students, today we are going to continue with the mechanical properties of fluids and इसमें हम आज बात करेंगे very interesting and important topic that is Bernoulli's theorem. इसकी applications करेंगे. बहुत ही interesting topic है and it's also very important topic. We'll start with its statement. इसकी statement हम पहले देंगे. Bernoulli's theorem states that in a streamlined flow of the liquid, total energy, that is sum of potential energy, pressure energy and kinetic energy per unit mass of the liquid remains constant at every cross section throughout the liquid flow. जो total energy है वो कंजर्व रहती है एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द फ्लो ऑफ द लिक्विड. दिस इज बर्नौलीज थ्योरम और इसको हम प्रूव करेंगे. ओके फाइन. विल स्टार्ट विद दिस एक्सपेरिमेंट हाउ वी प्रूव दैट सम एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. हम बात करेंगे कंसीडर ट्यूब विद वेरिंग क्रॉस सेक्शन A1 at end A and A2 at end B. ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जब हमने किया था आर्टिकल, उसमें भी हमने ऐसे ही किया था. लेट अस से A1 is the area of cross section at A, A2 is the area of cross section at B, and then V1 is the velocity of the liquid which is entering at A, and V2 is the velocity of the liquid which is coming out from end B. P1 is the pressure at end A and P2 is pressure at end B when liquid is to move out. Let's say this H1 is the height from ground or reference level of the end A, and H2 is the height of end B from the ground or any reference level. Okay. Now let us say the जो liquid है वो streamline उसका flow है and it is incompressible and non-viscous. ये हम assume करते हैं चीजों को. और जो density है it is uniform throughout the flow of the liquid in the tube. ठीक है. density मान लीजिए rho है. density rho है. अब हमें पता है कि mass of the liquid that is volume into density. तो mass of the liquid assume करो कि which is entering at A, this is equal to mass of the liquid which is moving out from the end B. अब इसमें क्या there is no loss of liquid, ये हम मान के चलते हैं. तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है A1 V1 is equal to this is C. This is volume per second entering at A into density. This is equal to volume into density, mass which is leaving from end B. This is ये बेटे ये A1 V1 वॉल्यूम है per second और ये डेंसिटी. तो वॉल्यूम into डेंसिटी क्या हो गया? मास ऑफ द लिक्विड which is entering at A, और ये क्या है? volume of the liquid per second at from B, and this is volume into density, mass of the liquid which is leaving out from B. अब mass तो सेम रहेगा because there is no loss of liquid in between. तो आपके पास क्या आ जाएगा? A1 V1 rho is equal to mass सेम है and this is equal to m mass. आप इसको लिख सकते हैं A1 V1 A2 V2 is equal to mass upon density and this is equal to volume. ये हमने एक इक्वेशन नोट कर ली. ठीक है. फाइन. अब इस यहाँ पे प्रेशर है P1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1. लेट अस से फोर्स एट दिस एंड A, force which is there due to the pressure P1 and area of cross section is A1. Force on the liquid at end A
by pressure energy is equal to P1 A1, ये फोर्स है, और मान लीजिए डिस्टेंस वेलोसिटी टू टाइम है, तो हमने क्या लिखा V1, और टाइम जो है दैट इज 1 सेकेंड, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये कट गया, आपके पास आ गया P1 A1 V2. This is work done per second on the liquid by the pressure energy. Now work done per second by the liquid against pressure at end B. This is equal to P2A2 V2 in the same way. बेटे ये फोर्स है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज 1 सेकेंड, so or you can say distance is equal to velocity to time is 1 second, so I will written V2 over here. Now net work done on the liquid, work done per second, this is equal to P1 minus P2, और यहाँ पे आ गया सॉरी A1. इसको बेटा एक बार डायरेक्ट मैं लिखने लगी थी, आई वॉज राइटिंग डायरेक्टली, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू एक्सप्लेन. माइनस P2 A2 V2. अब A1 V1 A2 V2 ये किसके बराबर है, P1 V, ये किसके बराबर है, P2 V, ये आ गया आपके पास P1 माइनस P2. This is net work done. अब मैं ये रब कर रही हूँ, I am going to rub this. अब हमारे पास क्या है, what we have here, this is net work done on the liquid, that is equal to P1 minus P2 into V. This net work done is equal to, अब तो क्या हुआ, there is an increase in the height, हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें H2 was greater than H1. So there is increase in the height. Also there is motion of the liquid. तो velocity भी increase कर रही है V1 से V2. तो हमारे पास क्या है, net increase in potential energy. This is equal to mg H2 minus H1. Increase in kinetic energy. This is equal to half mv2 square minus v1 square. ये जो काम हुआ ना network done on the liquid, it has resulted in increase in potential energy and increase in kinetic energy. जब काम हुआ, जब हमने इसको when the liquid has been entered through that end A and it is leaving out from B, तो work has been done and that is equal to, उसके कारण क्या हुआ, there is increase in potential energy, वो हाइट पे जा रहा है ना, ठीक है, तो H2 is greater than H1, तो there is increase in potential energy. There is increase in kinetic energy because velocity has been changed from V1 to V2. तो आपके पास ये आ गया, तो हम from equation 1 and 2, 3 we get P1 minus P2 V is equal to mg H2 minus H1 plus half mv2 square minus v1 square. करेक्ट. अब रीअरेंज कीजिए, V1 plus mg H1 plus half mv1 square. This is equal to P2 plus mg H2 plus half mv2 square. Clear? Now I can drop this. बेटे ये सारा लिख के करना पड़ेगा प्रैक्टिस आपको, और नॉलेज ड्रिल जैसे मैंने कहा कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आल्सो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन एक बार लिख के
P2 plus mgh2 plus half mv P2 square। तो इसको हम लिख सकते हमारे पास आ गया। Now we can write this as, ये हमने लिखा, इसमें ये V है और ये P2 V है। अब इसको हम लिख सकते हैं PV प्लस mgh प्लस हाफ mv square is equal to constant। We're dividing this by, आप इसको m से डिवाइड कर दीजिए, m से dividing the equation by m, तो आपके पास क्या आ जाएगा, PV upon m, this is m, ये कैंसल, आपके पास आ गया P upon rho plus GH plus half V square is equal to constant। तो दिस इज द स्टेटमेंट। प्रेशर, अभी हमने जो पिछला आर्टिकल किया था, जब एनर्जीज का आर्टिकल किया था, एनर्जीज ऑफ द लिक्विड इन मोशन, उसमें हमने किया था दिस इज वन फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ये हमने किया था P upon rho प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, दिस इज प्रेशर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, potential energy and kinetic energy per unit mass remains constant. This is one statement. इसके बाद आता है second statement. Second statement क्या है, इसको आपने इस इक्वेशन को, इसको रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, रो GH प्लस हाफ रो V square is equal to constant. This is another statement of the Bernoulli's theorem. ये दूसरी स्टेटमेंट है। ये क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, हमारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इज another statement of Bernoulli's theorem according to which sum of pressure energy, potential energy, kinetic energy per unit volume remains constant at every cross section throughout the liquid fluid। अच्छा, अब इसमें हम एक और we can one more statement of Bernoulli's theorem, one more statement। अब इसमें क्या हम स्टेटमेंट क्या निकाल सकते हैं, ये इस इक्वेशन से इसको G से डिवाइड कर दीजिए, इसको G से डिवाइड कर दीजिए। ये आ गया P अपॉन रो G प्लस G से क्या H आ गया प्लस हाफ V स्क्वायर अपॉन G इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ Bernoulli's theorem। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड P अपॉन रो G। ये है हमारा ग्रेविटेशनल हेड H, ये है हमारा वेलोसिटी हेड। तो इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द लिक्विड सम ऑफ प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड दैट रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वन स्टेटमेंट आपके पास, ये जो है स्टेटमेंट, इसको जब हमने n से डिवाइड किया तो प्रेशर, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास रिमेंस कांस्टेंट। फिर हमारे पास आता है सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट। फिर सम ऑफ प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड रिमेंस कांस्टेंट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, मान लीजिए इस इक्वेशन को कंसीडर कीजिए, इस इक्वेशन को H हमारे पास डिफरेंस जो है H2 माइनस H1 जीरो, हॉरिजॉन्टल है, ट्यूब जो है ऊपर नीचे नहीं है, एंड A एंड एंड B का जो है लेवल है वो सेम, तो H जीरो हो जाएगा। तो आपके पास आ गया P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने यहाँ से निकाला एक पॉइंट, दैट एज प्रेशर इंक्रीजेस वेलोसिटी डिक्रीजेस, और वेलोसिटी इंक्रीज करती
प्रेशर डिक्रीज करता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो प्रेशर इंक्रीज करता है, वाइस वर्सा। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं व्हिच आर बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरी। सबसे पहले जो हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे दैट इज आई एम गोइंग टू रब दिस, ये सारे स्टेटमेंट्स आप एक बार समझ लिए। आई एम गोइंग टू रब दिस एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरी। एक एग्जांपल लेते हैं हम सबसे पहले, दैट इज एटोमाइजर और स्प्रेयर। स्प्रे करते हैं ना, परफ्यूम स्प्रेयर, पेंट का स्प्रे करते हैं, जो स्प्रेयर होता है इसको हम एटोमाइजर भी बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, एटोमाइजर और स्प्रेयर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसमें कैसे यूज होता है बर्नौलीज थ्योरम। सी, ये एक बल्ब है, रबर बल्ब है, और यहाँ पे ये ट्यूब है, ये ट्यूब यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पे लिक्विड है, ये लिक्विड सरफेस है, ये खाली है यहाँ पे, और ये लिक्विड है, ठीक है। अब क्या है कि जब इसको हम स्क्वीज करते हैं, ये जो रबर बल्ब है इसको हम स्क्वीज करते हैं, तो जो एयर की वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। जब वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, लेकिन जो प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड है दैट इज हियर इट इज मोर। प्रेशर यहाँ पे कम है, प्रेशर सॉरी ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि एयर की वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया। अब यहाँ पे तो एयर की वेलोसिटी जो है वो एयर इज नॉट मूविंग है, तो इसलिए जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा, एंड द लिक्विड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और वो जो यहाँ पे एक नोजल बनी हुई है उससे वो स्प्रे की फॉर्म में निकल आता है। दिस इज हाउ स्प्रेयर वर्क्स, दिस इज हाउ एटोमाइजर वर्क्स। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आपने इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो एंड फास्ट मूविंग ट्रेन इज कमिंग ऑन द ट्रैक, ठीक है, तो यू आर एडवाइज नॉट टू स्टैंड देयर। होता है ना, आपको बोलते हैं कि बिल्कुल पास में खड़े हुए है ना, नहीं तो आगे की ओर गिर जाओगे। वो क्यों होता है ऐसा? एंड यू फील, और अगर आप खड़े हो ना, कोई तेजी से गाड़ी निकल के जा रही है, यू फील लाइक पुश्ड टुवर्ड्स द ट्रेन। क्यों होता है कि जब आप व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म और ट्रेन एकदम फास्ट उस पे जा रही है, फास्ट मूविंग ट्रेन इज देयर एंड ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे जा रही है, तो द एयर जो बिटवीन यू एंड द ट्रेन, उसकी वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी। एयर एकदम से मूव करेगी ना, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जो आपके पीछे है एयर, उसकी वेलोसिटी कम है, तो पीछे वाले जहां पे एयर की वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा हो गया। इन बिटवीन यू एंड ट्रेन तो जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर कम हो गया, तो यू आर पुश्ड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो you feel like pushing towards the train. That is why you are advised not to stand near the on the platform near the track. That is why this is advised. तो ये भी एग्जाम्पल बर्नौलीज थ्योरम की ही है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है, ये जो एरोप्लेन विंग होता है उसका डिजाइन ऐसा होता है सो दैट बर्नौलीज थ्योरम कैन बी अप्लाइड। कैसे? वहां देखिए, इसका जो डिजाइन होता है ना, ये ऐसा होता है कि ऊपर थोड़ा ज्यादा कर्व्ड होता है और नीचे थोड़ा स्ट्रेट होता है, और लेट अस से ये फ्रंट पार्ट है इसका, इस तरफ विंग, ये मोशन लेकर है, और जो एयर की स्ट्रीमलाइंस शो की हुई है ये इस तरफ, एयर की डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या होता है कि जब जो विंग है, जब एयर इसको कट करती है, सी एयर ने इसको कट किया, तो यहाँ पे जब एयर ट्रेवल कर रही है, इट हैज टू ट्रेवल मोर ऑन द अपर साइड एंड लेस डिस्टेंस इट हैज टू कवर ऑन द लोअर साइड। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जो हवा जा रही है, तो हवा तो जैसे जाएगी और उसके बाद बाहर निकलेगी, तो टाइम सेम है, टाइम तो सेम है, तो यहाँ पे नेचुरली
velocity has to be more because it has to upper part पे velocity ज्यादा होगी because it has to air has to travel more distance, air has to travel less distance. यहाँ पे high velocity हुई, जब high velocity हुई तो pressure क्या हुआ? low. नीचे क्या है? low velocity है तो pressure क्या हुआ? high. तो now there is a lift from high pressure to low pressure, and when it overcomes the weight then it is lifted up. जो start में lifting चली होती है ना plane को, तो this is based on Bernoulli's theory. Clear? These are very interesting examples जो routine में हम देखते हैं जो चीजों को उस तरह है. अच्छा, एक और interesting example है, ये आपने देखा होगा मूवीज में देखते हो कई बार, तूफान आ रहा है ना, और जो रूफ्स ऑफ द जो झोंपड़ियाँ होती हैं उनकी छतें उड़ती हुई दिखाई देती हैं. टीवी में कभी मूवीज में दिखाते हैं, है ना, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और उसमें से जो छतें हैं वो उड़ के जा रही हैं. तो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम. ये बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड है. कैसे? क्या होता है कि तूफान आ रहा है, हवा की जो वेलोसिटी है, एयर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, जो विंड ब्लो कर रही है, वेलोसिटी इज वेरी हाई अबव द रूफ्स. छतों पे जो वो है वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है. तो जो वेलोसिटी इतनी ज्यादा तो प्रेशर बहुत कम हो गया. अब अंदर घर के अंदर तो हवा तो बंद है, घर के अंदर तो हवा नहीं चल रही ना, तो वहां पे क्या है, अगर थोड़ी बहुत आ भी रही है तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम है और वहां पे जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो गया कंपैरिजन में. तो उससे क्या है कि जो प्रेशर है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड इट टेक्स द रूफ्स अवे विदाउट डैमेजिंग द हार्ट. वो पूरी छतें हो जाती है. क्यों? क्योंकि एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो ये जो कच्चे घर होते हैं, बिल्कुल जो छतें दूसरी होती है ना, तिनकों की बनी होती है ना, तो उन घरों की बात करें. पक्के घरों में तो नेचुरली जो पक्के घर हैं वो नहीं उड़ के जाएंगे, इतना ही उसको ओवरकम कर पाएगा. लेकिन जो कच्चे घर होते हैं जिनकी छतें इस तरह बनी होती है, आर्टिफिशियल सी छतें बनी होती हैं, तो उस केस में roofs are blown away. This is again during storms. This is again the example or application of Bernoulli's theorem. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग केस करते हैं. ये है स्पिनिंग ऑफ द बॉल. स्पिनिंग ऑफ द बॉल. जब बॉल स्पिन करता है तो क्या होता है, फास्ट मूविंग बॉल है, जब स्पिन करता है इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ. इसको हम मैग्नस इफेक्ट कहते हैं. इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ और इसको हम मैग्नस इफेक्ट कहते हैं. इसमें मुझे क्या होता है, व्हाट हैपेंस, हम इसकी दो चीजें, क्रिकेट में स्पिन होती है ना बॉल, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. जब स्पिन करता है बॉल तो ये इस तरह मूवमेंट है, बॉल की जो मूवमेंट है इस तरह है, और ये हमने स्ट्रीम लाइंस ऑफ द ये एयर की लिखा है, ये स्ट्रीम लाइंस ऑफ द एयर. अब बॉल, लेट अस से बॉल आगे की ओर मूव कर रहा है, ये बॉल का मूवमेंट का डायरेक्शन है. लेट से एयर की जो मूवमेंट है वो ये स्ट्रीम लाइंस जो है वो ये. अब क्या है, जब दोनों चीजें मिलती है, बॉल आगे की ओर भी, जो क्रिकेटर है बॉल को एक तो स्पिन कर रहा है सिर्फ, एक बॉल सीधा फेंक रहा है. लेकिन जब सीधा फेंकना है, बॉलिंग करनी है along with the spin, in that case what happens, अब ये देखो, इसके कारण जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो ऐसे बन रही हैं, वो ऐसे बन रही हैं, ठीक है. और जो स्ट्रीम लाइंस हैं ड्यू टू लीनियर मोशन वो हमारी इसके ऐसे बन रही है. तो यहाँ पे ये देखिए
एक ही डायरेक्शन में है, वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्रेशर कम होगा। तो अब क्या है, जो देयर विल बी जो फोर्स लगेगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी। तो क्या होता है, बॉल सीधा जाते जाते एकदम से डेविएट कर जाता है, सीधा जाते जाते जब स्पिनिंग भी होती है और बॉल लीनियर मोशन में भी जाता है। तो जब दोनों कंबाइन करते हैं, द स्ट्रीमलाइंस जब ड्यू टू लीनियर मोशन एंड ड्यू टू स्पिनिंग, वो अगर सेम डायरेक्शन में है तो वहां वेलोसिटी हाई होती है, प्रेशर कम होता है। और दूसरी तरफ दूसरी साइड पे जहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइंस होती है ड्यू टू लीनियर मोशन एंड स्पिनिंग, वहां पे वेलोसिटी लेस होती है और प्रेशर हाई होता है। तो उसके कारण जो पाथ है वो डेविएट होता है, एक फोर्स लगती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो उसके कारण जो पाथ बॉल करते करते एकदम से टेढ़ा हो जाता है। तो इसी तरह वो जो स्पिन करते हैं ना क्रिकेटर, वो इसी तरह करते हैं। बॉल करते स्पिनर सबसे ज्यादा डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता बॉल कहाँ जाएगी, सीधी आती आती एकदम से टर्न कर जाती है। तो दैट इज द स्पिनिंग ऑफ द बॉल, इसको हम बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है व्हिच इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। बोटिंग की आपने देखा होगा, जो बोटिंग करते हैं बोटिंग में कई बार होता है ना, वो होती हैं रेसेस होती हैं, आपने टीवी में देखा होगा, आपने कहीं जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें दिखाते हैं रोइंग ऑफ द बोट्स। खूब सारी लंबी लंबी बोट्स होती हैं और वो क्या करते हैं, बोट्स जब मूव करने की रेस लगती है, ठीक है। अब दो बोट्स हैं, इकट्ठी जा रही हैं, टू बोट्स आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि टक्कर सी लगती रहती है, कोलिजन सा होता रहता है। क्यों होता है, क्योंकि जब आप बोट को रो करते हो तो अब ये बोट है, ठीक है, और ये एक दूसरी बोट है। अब जब कुछ चला रहे हैं, बोट को रो कर रहे हैं, तो जो पानी है इधर का मूव किया और इधर का भी मूव किया, तो जो पानी की जो वेलोसिटी है वो कितनी ज्यादा हो गई, और जो दूसरी साइड ऑफ द बोट्स है वहां पे वेलोसिटी कम है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों बोट्स की इकट्ठी हो गई है ना, एज कंपेयर टू द ऑन द अदर साइड्स ऑफ द बोट्स। वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम है, दूसरी साइड पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा है। तो जो बोट्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पुश होता है वाटर, एंड देन दे मे कोलाइड विद ईच अदर। आई रिपीट, क्या है कि मान लीजिए ये दो बोट्स हैं और जो दो बोट्स हैं और उसमें जो ये वाला साइड है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होगा ना। अगर यहाँ पे हम चप्पू चला रहे हैं यहाँ पे लेट अस से, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाटर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। वाटर विल बी पुश्ड फ्रॉम हाई प्रेशर टू low pressure due to Bernoulli's theorem. So this is again application of Bernoulli's theorem. These are very interesting applications जो कि हम रूटीन में observe करते हैं, and all these are based on Bernoulli's theorem. So this was all about today's lecture. रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज कीजिए अच्छे से।